Before begin, let's discuss what we did in the previous classes. So we discussed about the variable and data types. These all are the basic building block for any of the programming language. Today we are going to cover an operator. So by the end of this particular chapter or this particular lessons, you have very good sound knowledge about the rich set of operators in JavaScript or any of the programming language that would be very useful to performing complex mathematical operations. So before begin, I am going to give you one gentle reminder over here. See, if you are going through this particular series or this particular lessons or chapter, if you are not getting any code and if you are not understanding anything, it is completely okay, my dear student, because what I feel, slower the reading, slower the watching, better the understanding. That means अगर आप धीरे धीरे चीज़ों को रीड करते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को वॉच करते हैं, समझते हैं, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बेटर होती है. सो हियर आई एम गोइंग टू शेयर, it's my personal experience. Here I am going to share with you, like you would have perfect, or you will be perfect in your particular field. So please be with me. Before begin, जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज यू विल गेट द नोटिफिकेशन. जब भी जो भी मैं कुछ नया बनाऊंगी, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना चाहिए. मेरी यही कोशिश होती है. एंड एज यू ऑल नो, दिस चैनल इज़ फ्री फॉर ऑल. Before begin, here I am going to set one more goal over here. So what I decided कि I will discuss one goal of this particular chapter. So the goal of this particular chapter is, if you are willing to learn, if you are willing to learn, no one can stop you. If you are willing to learn, no one can stop you. But if you are अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हैं, तो no one can teach you. So my dear student, आप हमेशा याद रखिए, अगर आपको सीखना है तो आप मेरे साथ रहिए. और if you don't want to learn anything, then no one can teach you. So please start. Operators, as we already discussed, we use operators to perform complex mathematical and logical operations. Now the question comes, what are the classification of operators? So operators in JavaScript, in Java, in Python, in C++, or any of the programming language can be classified into mostly 7 to 8 categories. Here we are going to discuss one by one. First is arithmetic operator, second is relational operator, third is logical operators, bitwise operators, increment and decrement operators, conditional operators, special operators. So the value on which the operators operate are called operands, because in this particular video we are going to use two words continuously. First one is the operators, another one is the operands. So here I am going to tell you the value on which the operators operate are called operands. To know in detail, we have to open our editor. So editor is nothing but your environmental setup, जहाँ पे आपको आपका कोड से रिलेटेड आपकी क्वेरी सॉल्व होंगी. सो हम लोग जल्दी से अपने गूगल इंजन पर चलते हैं और वहाँ पे अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं. सो वी आर हियर ऑन अवर गूगल इंजन, और इधर आपको टाइप करना है ripple.it.com करके आपको ये टाइप करना है. हियर आई एम गोइंग टू क्लियर इट. जो भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर वो ये क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज़, या वो इससे कुछ सीखना चाहते हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनके लेवल की क्लास है, बट अगर उनको अपने बेसिक कुछ क्वेरीज अगर क्लियर करनी हो तो प्लीज़ वो अपना नॉर्मल एडिटर यूज़ करेंगे, अपना लाइव सर्वर ओपन करेंगे और उस तरीके से वो अपना कंसोल पे अपने रिजल्ट को चेक करेंगे. क्योंकि ये मैं जो सीरीज़ है वो चाइल्ड स्पेसिफिक भी, चिल्ड्रन के लिए भी लेके चल रही हूँ. मतलब जो बच्चे 10+ एज में हैं वो इस टाइप से कैसे अपनी चीज़ों को
सेफ एंड सिक्योर वे में अपने कोड का आउटपुट देख सकते हैं. सो जावास्क्रिप्ट में मोस्टली हमें जो काम होता है वो कंसोल पर करना होता है. सो दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर एडिटर. सो यू हैव टू चूज योर एडिटर अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस. सो लेट्स डिस्कस. वी आर हियर. ओके, तो आप इधर देख पा रहे हैं, दिस इज़ अवर ब्राउजर, दिस इज़ अवर कंसोल. This is the editor portion where we have to write our code. These are our files portion. So हमें JavaScript के अंदर जाना है, that is .js file. So now we have to continue where we have left. So यहाँ पे मैं अब आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन डील करूँगी. तो आप देखेंगे सपोज व्हाट आई एम डूइंग. सी, अगर आप ये पर्टिकुलर आज लेसन देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये मैम इसमें सिखा रही हैं. यस, मैं आपको वही सिखा रही हूँ, बट माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जो कमिंग क्लासेस हैं उसमें यूज़ होने वाले हैं. और यू नो जिससे आपकी लॉजिकल स्किल्स एज वेल एज आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो भी इससे बढ़ने वाली है. कैसे? लेट्स डिस्कस. सो here we are going to deal arithmetic operators. so चलो मैं जल्दी से इसको यहाँ पे टाइप भी कर देती हूँ. arithmetic operator. so basically 4 types of arithmetic operator, that is addition, subtraction, multiplication, division. अगर आप इसमें I think 2 more left. so that is like modulus, and let's discuss one by one with the example because theory I don't think so कितना ये रियली माइंड में जाता है. we mostly believe in practically thing. so to see the thing practically, so let's discuss. like here can you see over here मैंने क्या लिया था, x की वैल्यू 6. that means we are going to store 6 in the x. y equal to 7. again yeah, I am using equal to sign which is not correct. we have to store the 7 in the y, in the x plus y, addition of 2x plus y we have to store in z container. so like that we discussed in the previous class. इसलिए मैंने इसको डिटेल में आपको डिस्कस नहीं कराया, बट मुझे बस थोड़ा सा आपको वेरिएबल का बताना था कि किस तरीके से हम लोगों ने वेरिएबल इज़ नथिंग बट अ कंटेनर और किस तरीके से हमने वैल्यूज़ को स्टोर कराया था. सो हियर आई एम डिस्कसिंग द सेम थिंग. now can you see, now click on run button. so you can find the output of z is -1. what we did, because this time we are going to do arithmetic assignment operator, but इसमें जो हमने जो assign यूज़ किया है, arithmetic जो sign यूज़ किया है वो क्या किया है, माइनस. so x value that is 6, y value that is 7, and as you already know 6 minus 7, so -1 will be द आउटपुट. सो आपने यहाँ देखा द आउटपुट ऑफ जेड इज़ -1. ये देखिए मैं थोड़ा सा क्विक करा रही हूँ क्योंकि आई नो कि अभी आपको लग रहा है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन एक बहुत ही सिंपल चीज़ है. माय डियर स्टूडेंट, जिसको नहीं पता है वो बिल्कुल बेसिक से लर्न कर सकता है, क्योंकि एक रेस नहीं है कि आपको रेस में लगना है, आपको स्लोली ही चीज़ों को सीखना है. मैं हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ अपने स्टूडेंट को कि भागने का नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं एक लेवल पर. तो आपको थोड़ा मैं इसको फास्ट वे में करके बता रही हूँ और आपको भी सेम इसी तरीके से करना है. अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस डील करना है. ठीक है, ये मैं इसको क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, आई एम डूइंग टू कमेंटिंग दिस. कमेंटिंग एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस कि सपोज़ मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप 10 इयर्स बाद भी एक कंपनी को छोड़ के जाते हो और आपका कोड वो 10 इयर्स बाद कोई भी बंदा आके आपका कोड चेक करता है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने कोड के साथ क्या किया था. जिससे हमेशा देखिए, अगर आपको कमेंटिंग की आदत नहीं है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन माई प्रीवियस क्लासेस, इट इज़ कम्प्लीटली ओके, बट आपको कोड को यू हैव टू राइट योर कोड इन सच अ वे कि जो कोई भी बंदा अगर आपका कोड रीड करता है तो कोड को यू हैव टू बी रेडी विद योर कोड इन रीडेबल फॉर्म. सो हमेशा इस चीज़ को आपको याद रखना है. सो कैन यू सी माय डियर स्टूडेंट, मैंने इसको बहुत ही क्विक वे में किया है और उसका आउटपुट आपको यहाँ पे शो कर दिया है. अगर आप इसको प्रॉपर 1 by 1 देखना चाहते हो तो आप इसको स्लोली आप इसको अगेन वॉच कर सकते हो और अपना आउटपुट चेक कर सकते हो. नाउ वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स इन डिटेल. ओके, सो हियर आई डिड नथिंग, बस मैंने प्लस
मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और ये सारे साइन जो है वो मैंने यूज़ किए हैं. एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस अबाउट वेरिएबल्स, सो दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स ओनली. इसलिए माय डियर स्टूडेंट हर एक क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. सो बी विद मी, लिसन टू मी केयरफुली. Now we are going to do commenting. So you will get to know what ma'am was doing here. So now can you see, my dear student, what you are seeing over here? We are doing to commenting, okay, because we are doing commenting inside the multi-line comment. So it's not like that कि हम लोग कुछ भी लिखें, but here I am giving you some theory notes. So you have to know also. So like plus gives the sum of टू नंबर, एच वी ऑलरेडी नोज. सो सी हमने कमेंटिंग की थी, अभी भी मैंने और भी बेटर वे में कमेंटिंग कर दी. सो दैट्स वाई यू विल बी रीड और यू विल अंडरस्टैंड वेन एवर यू आर गेटिंग रेडी फॉर योर एग्जाम. सो यू हैव टू जस्ट ओपन दिस पर्टिकुलर वीडियो और यू विल गेट टू नो द रिजल्ट एज वेल एज योर थ्योरी पोर्शन. ओके, सो यू हैव टू राइट द कोड इन सच अ वे कि कोई भी कभी भी समझ पाए. सो सी यहाँ पे मैंने माइनस साइन यूज़ किया है. अभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानता है वो उसको क्या पता होगा कि ये प्लस साइन, मैम ने तो इधर लग रहा है मैथ्स यूज़ कर दी. या आई यूज्ड मैथ ओवर हियर, बट वी आर डूइंग विद दिस कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल expressions, and we will do more problem solving skill based on these activities, and we will be perfect in our problem solving skills. but अभी आपको उसका रिजल्ट समझ में नहीं आएगा. coming classes you will see the difference. जब जो क्लासेस रहेगी आपकी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी. So here we did all my commenting, like multiplication gives the product of two number. Here we are using, yes, this particular sign where I am going to write gives the quotient, you know already. Here we are using percentage sign, so what it will gives. प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि ये बहुत ही बच्चों के लेवल का लाइक क्वेश्चंस है और जो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में लिखने को बोल रही हूँ. और बी एक्टिव इन द क्लास, बी विद मी, इंटरेक्टिव रखिए सेशन को. मैं अगेन एंड अगेन यही बोलती हूँ आपको. सो हियर मॉडुलस गिव्स द रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स. ओके, सो थैंक यू सो मच जिसने कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, और जिन्होंने नहीं लिखा है वी विद मी सीखे धीरे धीरे प्लीज़, बट सेशन को इंटरेक्टिव रखिए. Let's discuss about relational operators. So what are the relational operator? If somebody knows, so please go and write in the comment box. Otherwise I am going to discuss over here. See, as the name suggests, relational, that means it's some kind of relation. Yeah, you can understand from this word only. So relational operators are those operators which have the sign with sign. चलिए मैं इधर क्या करती हूँ, इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू पेस्ट ओवर हियर. सो बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू मॉडिफाई अवर कोड. या लेट्स टेक वन मोर न्यू एग्जाम्पल ओवर हियर, ओके, बिकॉज वी हैव टू शो some kind of relation. Okay, so here we are going to choose the value for a equal to 6, which is not correct. We have to store the value 6 in the container a. So this is called variable. Okay, why we are explaining again and again? Because we want to revise this concept so it will goes directly in your mind. Okay, so a value is 6, b value is 5. Now we have to show over here we have to show some kind of relation, that is a is greater than b. As like your in your family, like your brother is younger than you or elder than you. So basically you have to show some relation. Okay, in between the numbers you have to show some relation. So here what we are going to do, we are going to choose a value is 6, b value is 5, c value is a is greater than b, and whatever the
result will come out, we want to print on our console. I don't think so अब इतना मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. बट ठीक है, मैं ट्राई करूँगी मैक्सिमम में कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, जिससे जब भी जो भी जिसकी जो नीड होगी, अगर पर्टिकुलर लेक्चर को ही सुनना चाहता है तो उसको उसके पिछले कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए. So you can see, my dear student, the output of C is, it is the string. So the output of C was true. True. Why? Because A is greater than B. My dear student, अब आपको बताना है कि जो A की वैल्यू है वो B से बड़ी है या नहीं है. We can see very easily ना. So A is greater than B. So this value is true. True or false, these are the boolean values. Okay, मैंने वहाँ पे आपको जो हमारा प्रीवियस लेसन था उसमें मैंने आपको boolean values नहीं बताई थी. इसलिए नहीं बताई थी because when we will discuss more and more example, मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ. बट एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, मैंने एक प्रिपेयर्ड किया हुआ है कि कब मुझे क्या बताना है. सो बी विद मी, मैं हर एक टॉपिक को कवर करने वाली हूँ. सो हियर कैन यू सी किस तरीके से हमारे नोट्स भी रेडी होते जा रहे हैं. सो हियर यू कैन सी हियर द आउटपुट ऑफ सी इज, इधर आप देखेंगे कि मैंने प्लस सी लिखा है. प्लस दैट इज द आउटपुट ऑफ सी इज, ये तो मुझे चाहिए है. प्लस आई वॉन्ट कॉन्कैटिनेशन, वॉट एवर द रिजल्ट विल स्टोर्ड इन सी, द सेम रिजल्ट will print on our console. So that's why it's a concatenation, मतलब 2 चीज़ों को जोड़ दिया है with the help of plus sign. So my dear student, these are very small things, but beginner level पे आपकी ये जो मैं छोटी छोटी tips and tricks in between the session बताने वाली हूँ, ये आपको बहुत ही काम में आने वाली हैं. So please be with me. Now आप इधर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन साइन यूज़ किया है. व्हाट वी यूज ओवर हियर, ग्रेटर देन, दैट मीन्स सॉरी ग्रेटर साइन यूज़ किया है. सो इज़ नॉन एज ग्रेटर देन ऑपरेटर. नाउ आपका थ्योरी पोर्शन भी रेडी हो गया कि अगर इस तरीके से आए तो व्हाट वी कॉल, सपोज आपका क्वेश्चन आया, ठीक है, आप पर्टिकुलर किसी आप इवन स्कूल्स गोइंग किड के लिए तो ये पक्का आने वाला क्वेश्चन है कि आपको इस तरीके से यूज़ किया तो द आउटपुट ऑफ सी व्हाट विल बी. ये आपको 4 वो आपको ऑप्शंस देखे होंगे, उसमें से आपको एक बार टिक करना है. तो माय डियर स्टूडेंट, आप बताइए कि अब आपको ये टफ रहा? आई डोंट थिंक सो कि अब आपके लिए ये प्रॉब्लम है. सो अगेन आपको अपने कॉन्सेप्ट, तो आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट तो आपके रेडी है, बट आपको इसका बेसिकली वो आपसे पूछने वाले हैं कि इसका प्रिंट स्टेटमेंट क्या होगा. बिकॉज उनको तो जो टीचर्स है या टीचर्स की जो एक्सपेक्टेशंस रहेंगी उनको आपको आंसर्स चाहिए कंप्यूटर्स के वे में कि आपके कंप्यूटर्स ने क्या रीड किया इन द फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट, what it is going to be print on your console. So you have to take according to your particular options or problem. So now we are going to commenting out this. Now we will do in a quick way because अब आपको पता लग गया है कि what is relational operator means some kind of relationship होगा. So here we have used like greater than, फिर lesser than, you know, greater than equal to, lesser than equal to. So we will do 2-3 examples over here. So you will get to know कि हम किस तरीके से चीज़ों को use कर रहे हैं. So इसको हम लोग थोड़ा सा quick रखेंगे. Here we are going to take one more example over here based on relational operator. So what we are going to do over here, you can see over here I have changed the sign, that is greater than or equal to. We have to check condition over here, A is greater than or equal to. अगर greater than है तब भी ठीक है और greater than equal to है तो can you see my dear student over here, A value is 6, B value is 5. So here can you see A, that means 6 is greater than or equal to 5, means greater than तो है ना. So that's why our output it's going to be print on our console. So that is the output of C is true. Now we are going to do commenting this. Now what we are going to use over here, चलो ये हमने greater than equal to देखा था, अभी हम लोग क्या देख लेते हैं, less than equal to वाला साइन देख लेते हैं. We have to modify this because we have to deal the, you know, like theory portion as well. So here we are going to do this like less than or
या ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो बेसिकली यहाँ पे हमने लेसर देन लिखा था, आपने लेसर देन और इक्वल टू भी आपको वहाँ पे अपना अपडेट कर देना है इन योर थ्योरी पोर्शन। देखिए मैं कोई मशीन नहीं हूँ कि मैं गलतियाँ नहीं करूँ। गलतियाँ देखिए बिल्कुल करना चाहिए, भर भर के गलतियाँ करना चाहिए, मेरा पर्टिकुलरली यही मानना है, बट उन गलतियों से सीखना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, अगर इन बिटवीन द सेशन जो मैं आपसे बोल रही हूँ और अगर सपोज़ मैं आपको इधर लिख के नहीं बता पाती हूँ, बट मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं ऐसा ना करूं, बट अगर कुछ ऐसा छूट जाता है तो माय डियर स्टूडेंट आपको यही सोचना है कि मैम भी एक इंसान है, मैम इज़ नॉट अ मशीन, कि वो गलती नहीं कर सकती हैं। देखिए मैं हमेशा इस चीज़ पे हमेशा बिलीव करती हूँ, नो बडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, सो प्लीज़ कोऑपरेट मी, बी विद मी। ओके, सो आप सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे, तो अगर मैं कभी कुछ इसमें गलत भी लिख देती हूँ तो यू हैव टू बेसिकली आपको मुझे बताना है कि मैम इसको आपको ठीक करना है, और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के बता सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बस मेरा पर्पज़ है कि आपको इससे कुछ सीखना है और इस आज पर्टिकुलर लेसन्स को आज के आज आपको ख़त्म करना है। दैट मीन्स आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने चाहिए, यही मेरा एक पर्पज़ है, जो कि मैं मेरी पेड क्लासेस में मैं 2 एग्जाम्पल्स ही डील करूँगी, बट वो बच्चों के प्रॉपर माइंड में जाते हैं। बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन स्टूडेंट हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, असाइनमेंट सबमिट करते हैं। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स you have to do, and you have to be perfect in your particular subject on your particular field. So here I am going to written like greater than or equal to is known as greater than or equal to. Okay, so these are our theory portion. Similarly you have to modify over here. Okay, this particular sign is known as lesser than or equal to. Okay, so in based on these operations you have to check your values. So now we are going to discuss in relational operator, we discuss greater than, lesser than, greater than equal to, lesser than equal to. Let's discuss one more example over here. इक्वल टू, सी माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि 1 इक्वल टू साइन इज नॉट एन इक्वल टू साइन, बट हियर double equal to is we can call in JavaScript or any other programming language, this is the equal to sign. This particular sign is a equal to sign. So what we are going to read over here, you have to check C equal, matlab we are going to store the value A equal to B in the container C. You have to read in such a way कि आप का बेसिकली एक कॉन्सेप्ट यहीं से ही बेस बनना शुरू हो जाए। तो जब आप प्रॉपर जो प्रोजेक्ट्स करते हैं वहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्लियर होता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए और हमें किस तरीके से अपनी चीज़ों को, अपने एग्जाम्पल को सेट करना है। सो हियर द आउटपुट ऑफ सी इज़ फॉल्स, वाई? बिकॉज यू कैन सी ए वैल्यू इज 6, बी वैल्यू इज 5, 6 नॉट इक्वल टू 5, सो दैट मीन्स आवर आउटपुट is false. So the output of C is false. Okay, अब हम इसको कमेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सी, अगर हमने यहाँ पे इक्वल टू का चेक किया है, दैट मीन्स वन मोर ऑपरेशन वी आर गोइंग टू डील ओवर हियर, दैट इज नॉट इक्वल टू। सो चलिए इसी पर्टिकुलर कोड को हम लोग ले लेते हैं और इस पर्टिकुलर पोर्शन में दैट मीन ए इक्वल टू बी था, वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे नॉट इक्वल टू। ओके, कैसे? आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना है और इक्वल टू, दिस साइन इज कॉल्ड आ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। सो सी ओवर हियर, सी वी आर गोइंग टू स्टोर a value inside the container C. What is that value? A not equal to B. तो आप ये देख पा रहे हैं, आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए माय डियर स्टूडेंट कि A नॉट इक्वल टू B 6 5 के बराबर नहीं है क्या? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ मुझे उसका आउटपुट क्योंकि चाहिए है। तो आउटपुट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़। Now you can see over here the output of C is true because 6 is not equal to 5. Can you see my dear student?
अगेन एंड अगेन देखिए, मैं इतने बार एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं एक्सप्लेनेशन उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है, बट माय डियर स्टूडेंट, मैं समझती हूँ जो रियली नीडी होते हैं या जिनको ये फ्री लेक्चर्स की रियली ज़रूरत होती है, वो उस चीज़ को फील करते हैं कि एक्सप्लेनेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है. So can you see over here, my dear student, we are going to commenting on this with our theory portion. So that is not equal to is known as not equal to operator. So we discuss 6 operators inside the relational operators. Okay, so we are going to commenting on this. Okay, now soon after we are going to discuss logical operators. So as we all know, my dear student, logical operators के लिए आपका जो बाइनरी नंबर्स का लॉजिक होता है वो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए. दैट मीन्स आपको एंड और एक्सॉर ये सारी ट्रुथ टेबल आपको पता होना चाहिए. सो जिनको पता है वो इजीली ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. बट समवन बेसिकली डोंट हैव आइडिया अबाउट द बाइनरी नंबर्स लॉजिक एंड एनीथिंग, सो डोंट वरी, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. सो उसकी हेल्प से फिर आप नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स को डील कर सकते हैं और आउटपुट को अपने कंसोल पर प्रिंट करा सकते हैं. बट जितना भी मैं सिंपल करने की कोशिश कर सकती हूँ, आई विल सिंप्लीफाइड दिस. So don't worry, be with me. Now let's discuss by logical operators. So there are 3 types of logical operators: and or logical operators, or logical operators, and not. Okay. सो व्हाट आर दी, देखिए अगेन मैंने आपको बोल दिया है, जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है. मैं पूरा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करूँगी. सो हियर वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ओवर हियर. सो बूलियन रिजल्ट, ओके, मीन्स हमें बूलियन में इसका रिजल्ट चाहिए, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स. दिस इज़ द बूलियन वैल्यू. ओके, सो ट्रू एंड विथ फॉल्स, द रिजल्ट विल बी, व्हाट विल बी द रिजल्ट? The result will contain false only. जब भी हम लोग देखिए, जब आप एंड की ट्रुथ टेबल बनाएंगे, सो ट्रू दैट मीन्स 1, फॉल्स दैट मीन्स 0. तो आप देखिए, मैं खैर ऐसा डायरेक्ट तो नहीं बोलूँगी, बट अगर थोड़ा सा मैं लिटिल बिट आपको बेसिकली कॉमन सेंस देने की कोशिश करूँगी कि अगर आप 1 को 0 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो आंसर विल बी 0. तो आप इसको ये मान के चलिए कि 1 दैट मीन्स ट्रू, 0 दैट मीन्स फॉल्स. So we are going to store the result inside the container. result नाम का कंटेनर है और we want a boolean value. तो जो result है हमारा या तो true होगा या false होगा. So true and with false, result will contain false. Similarly, I am going to take one more example over here, that is true और with false. आप ये ले सकते हो, या false और with true, इस तरीके से आप लोगे तो यू विल गेट टू नो द रिजल्ट. अब आप बस 0 1 इस तरीके से आप वहाँ पे रखते जाइए, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि व्हाट यू हैव टू डू. बट माय डियर स्टूडेंट, बेटर आप जब बाइनरी नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें, तभी इस पर्टिकुलर ऑपरेटर्स को आपको डील करना चाहिए. बट हियर आई हैव टू सी, बेसिकली मुझे हर किसी के लेवल से आपको बताना है कि क्या होता है. सो हियर वी आर गोइंग टू टेक वन मोर एग्जाम्पल, लाइक और वाला ले लेते हैं, ठीक है. सो बूलियन रिजल्ट, नाउ दिस टाइम वी वांट अ रिजल्ट विद और ऑपरेटर. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट ट्रू और विद फॉल्स. ओके, सो जिस किसी को भी देखिए पता है तो जल्दी से स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, गो एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट विल बी द आउटपुट of particular this example, like true or with false. the result will be, my dear student, please be with me, सेशन को इंटरेक्टिव रखिए, आप जल्दी से बताइए. true, the result will be true. so thank you so much जिस किसी ने भी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया हुआ है, थैंक यू सो मच. now we are going to see one more example over here based on logical operators. and done or done. Now not, okay, not operator. So you have to see with one more example, boolean result, what we are going to store, which value we are going to store in result.
Yes, not. Yes, you can choose anyone, true or false. It is up to you. You are free for choose any values. So not false. अब false नहीं है तो false का उल्टा क्या होगा? ये my dear student, you know the word opposites ना. It's very simple. So the result contain true only. Why? Because not false. If something is not false, so what will be the answers in Boolean? True only, na? If not true, what will be the answers? False only. So these are the small things you have to keep it in your mind. बट प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट बी विद मी, सेशन को इंटरेक्टिव रखिए, आपको भी फन आएगा और मुझे भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फील होता है कि किड्स आर डूइंग. नाउ वी आर गोइंग टू कमेंटिंग ऑन दिस. एज ऑफ नाउ दिस वॉज इनफ फॉर लॉजिकल ऑपरेटर. सी मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी बता ही देती हूँ इधर. चलिए, लाइक 5 इज लेस देन 4. सो एज यू ऑल नो 5 इज लेस देन 4 है क्या? द रिजल्ट विल बी फॉल्स ना. देन यू वॉन्ट नॉट रिजल्ट ऑफ फॉल्स, सो इट विल बी ट्रू ओनली. सपोज हियर वी आर गोइंग टू गिव वन मोर एग्जाम्पल. सपोज आप यहाँ पे बाइनरी नंबर्स नहीं जानते हो, मुझे पता है, ठीक है. मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको ट्रू और फॉल्स का क्लियर करके बताती हूँ कि कैसे विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल आप उन नंबर्स का बाइनरी नंबर्स लिखोगे. तो उसका तो सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा, बट इधर आप देखिए नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी आप चेक कर सकते हैं. लाइक 6 इज लेस देन 5, रिजल्ट विल बी 6 इज लेस देन 5, फॉल्स. एंड with 5 equal to 5, this result will be false. And with 5 equal to 5, the result will be true. False and end with false. What will the result will contain? Obviously false. सो आप इस तरीके से भी एक कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. जिनको बाइनरी नंबर्स या अभी बाइनरी लॉजिक या वो बेसिकली आपको कन्वर्जन नहीं पता है, तो बिल्कुल आप इस तरीके से भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं. सून आफ्टर यू विल कन्वर्ट योर नंबर इन द बाइनरी नंबर्स. As I already told you, we will make separate video on this. Now, so what was our learning objective? So our learning objective with this particular lessons, I have now we can say we have a sound knowledge about the rich set of operators in JavaScript. We saw how we can perform complex mathematical and logical operations. Okay, and basically while going through this chapter, here I am going to suggest all my students see what I believe: slower the reading, slower the watching, better the understanding. So do not panic if you initially don't see any code in this chapter, in this particular lessons, or you are not basically understanding any concept. It is completely okay. Whatever you learn here would be applied in the upcoming chapters or upcoming lessons. So concentrate well in this chapter. प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.